8. The value of D is 17 minus 7, that will give you 8. So अब देखिए ध्यान से, 4 पैरामीटर्स में से 3 की वैल्यूज मिल चुकी है राघव, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करके Sn का ढूंढ सकता हूं n का वैल्यू? So just substitute the values. The value of Sn is 636. n हमें ढूंढना है. The value of A is 9 plus n minus 1 and the value of D is 8. देखिए, in the entire equation you are having just one unknown, that is n. Solve करोगे quadratic equation आएगा, उस quadratic equation को solve करोगे तो n की 2 values मिलेगी. Come on everyone, solve this and tell me the value of n. Solve कीजिए फटाफट. Sir, 12. The answer is n is equals to 12. Correct. Sir, 12. दूसरा n का आंसर क्या आ रहा है? Minus 53/4. Very good. n की देखिए 2 वैल्यूज आ रही है, but as you all know the value of n it should be a natural number only. तो आप ये वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे एंड आप लोगे n is equals to 12. n is equals to 12 का मतलब है इस AP में पहले 12 टर्म्स को ऐड करोगे तब जाके आपका सम क्या आएगा? 636. By adding first 12 terms. This is your question. So I think so now question number 4 is clear to all of you. Let's move to question number 5. Yes, Raina. 5th question, please. Yes, sir. The first term of an AP is 5, the last term is 45, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. ठीक है. You need to find the number of terms. यानी कि you need to find the value of n as well as you need to find the value of d. So Raina, the value of a is given to you. Last term दिया है and Sn दिया है. So Yes. what can you do for this question? सोचिए थोड़ा. सर वो जो छोटी वाली मेथड थी that is Sn equals to n/2 into a plus l कर सकते हैं. Very good. N is equals to n upon 2 and bracket में a plus l. ये आपने एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था. जब आपके पास लास्ट टर्म अवेलेबल होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. वैल्यू ऑफ Sn is 400. n हमें नहीं पता है. The value of a is 5 and the value of l is 45. So 45 plus 5 will give you 50 and 50 upon 2 will be 25. So 400 upon 25, this is the value of n. So n की value 16 आ रही है राइना? हाँ सर. Perfect. n की value 16 आ चुकी है. Now can you find d? Yes, sir. d ढूंढने के लिए क्या किया जाए? Come on, tell me. Sir, a plus n minus 1 into d. Very good. a plus n minus 1 into d पर a is equals to an होता है ना? an is equals to a plus n minus 1d. So an अब क्या लोगे आप लोग? 45. क्यों 45? सर क्योंकि इससे लास्ट टर्म 45 है. वेरी गुड. यानी कि लास्ट टर्म कौन से पोजीशन पे है? 16. तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? a 16th लूंगा. Yes, sir. यानी कि a plus 15d. Now instead of a 16 I can write 45. That is equals to 5 plus 15 times d. So this will give you 40 upon 15d. 8/3. d का वैल्यू 8/3. Clear everyone? था easy a question. Now as you can see बहुत सारे questions में है ना आपको यही कॉम्प्लेक्स चीज यूज करनी है. कभी सम्स आएगा, कभी ये an वाला फॉर्मूला आएगा, बट यू जस्ट नीड टू बी क्लियर कब क्या यूज करना है. ठीक है? Okay, so I think so question number 5 is clear to all of you. So now we'll move to the next one. That is question number 6. 30 seconds to for all of you to note it down. मैं एक फकीर हूं, अगर ये हाथ है तो मैं नमन. नमन, दिस इज फॉर यू. मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा फिर यहां से एंड परमानेंटली आपको मैं जूम क्लासेस में से ब्लॉक कर दूंगा.
टिल द टाइम जब तक कीस्टोन ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहा है तब तक. गुड. एंड डोंट वरी, आपको मैं ये गाना बजाने का भी टाइम दूंगा. आज ये 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाए ना, फिर सब लोग अपने अपने चॉइस का गाना बजाइएगा, बट नॉट इन द बिटवीन. गुड. So I think so we'll move to the next Sir? one. That's question number 6. Yes, Raina, बोलिए. हाँ सर, मुझे वो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी के बाद वाला जो किया वो पता नहीं चला. ठीक Can है, you देखिए, explain? देखो, हमें ढूंढना है d. हमारे पास ये रिलेशन है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी. an का मतलब क्या है? nth पोजीशन वाला वैल्यू. हमारे पास sir. लास्ट टर्म है 45. ये 45 कौन से पोजीशन पे है? 16. 16th पोजीशन पे. So can I say my 16th term is 45? Yes. So अच्छा, 16th okay, term is substitute 45. किया. तो अब मैंने ले लिया a16 क्योंकि मेरे पास a16 की वैल्यू है. ओके, आई हैव द वैल्यू ऑफ a, आई हैव द वैल्यू ऑफ n ऑल्सो. तब मुझे जाके मिलेगा d. दैट्स द रीजन हमने यहाँ पे a16 लिया है, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल था और इसका पोजीशन भी अवेलेबल है. Yeah, sir. Okay, perfect. Now we'll move to the next one. That is question number 6. Yes, Krish, can you please read the sixth one? मैंने करी कितनी मेहनत सारी Naman, bye, beta. You are removed. Yes. Respectively. Question number 6, please, Krish. Yes, sir. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. Hmm. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, so Krish, what are the values given to you in this question? Sir, in this question, the first term is given. So A is and the last 17 term- yeah, and last term L is equals to 350. ये भी दिया हुआ है. Perfect. Yes. और कुछ दिया है क्या? And common difference D. What's the value of D? 9. 9. Okay. How many terms are there and what is their sum? कितने terms है वो हमें ढूंढना है, यानी कि n की वैल्यू ढूंढनी है. एंड ये सारे टर्म्स का सम भी ढूंढना है हमें, क्रिश. तो सारे वैल्यूज हमने लिख दिए यहाँ पे. हाँ. चलिए, सो थोड़ा बहुत रिलेटेबल लग रहा है क्या ऊपर वाले से, क्वेश्चन नंबर 5 से? सर, पहले तो an equals to a plus n minus 1. पहले क्या किया जाए? an equals to a plus n minus 1 d. वेरी गुड. an is equals to a plus n minus 1 times d. an हम ये लास्ट वाली टर्म ले लेंगे. हाँ. द वैल्यू ऑफ a is 17. हमें नहीं पता ये लास्ट वाला टर्म कौन से पोजीशन पे है. So we don't know n, but we have the value of d as 9. By solving this, मिल जाएगा आपको the value of n over here. Yes, sir. क्या आ रहा है n का value? Tell me. Sir, 38. Very good. 38, sir. The value of n is 38. 38. n मिल चुका है. अब हमें sn ढूंढना है, यानी कि s38 ढूंढना है आप लोगों को. Yes, So sir. to find s38, देखिए लास्ट टर्म आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करो, n/2 and bracket में a plus l. That means 38 upon 2. First term is 17 and last term is 350. Solve कीजिए, आ जाएगा आपका 6973. 38. 6973. Perfect. 6973 is the correct answer. Absolutely perfect. So now I think so you all are getting clear with this pattern कि an sn का कब कब कैसे कैसे यूज करना है. कुछ वैल्यूज हमेशा है ना दी ही रहेगी, आपको सिर्फ इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अपने बेस का फॉर्मूला चूज करना है. जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, यू विल गेट द आंसर. Okay, so we'll move to the next one. That is question number 7. 15 seconds for all of you to note it down. And जिन्होंने लिख लिया है तब तक फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए.
Okay, so we'll move to the question number 7 now. Pay attention, everyone. The question is, find the sum of first 22 terms of an AP. That means हमें ढूंढना है sum of first 22 terms. S22 ढूंढना है of an AP in which the value of D is 7. D की value दी गई है 7 and 22nd term is 149. That means A22 is given to you, that is 149. So as you can see over here, S22 ढूंढने के लिए N की वैल्यू है आपके पास 22, D की भी वैल्यू है 7. अगर A का वैल्यू मिल जाए तब जाके आपको S22 मिलेगा. तो A का वैल्यू ढूंढने के लिए हमारे पास ये एक वैल्यू दिया है A22. देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको. A22 को I can write like this. A22 is equals to A plus 21D. A22 का वैल्यू है 149. A मुझे नहीं पता, पर D की वैल्यू I know it, that is 7. सॉल्व कर देते हैं इसको. So 21 into 7 is 147 and 149 minus 147 is A. तो A का वैल्यू आ गया आपका 2. यहां पे A मिल चुका है 2. Now you can find S22 by using the formula of, again the shortcut formula, n by 2 A plus L. शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने इसके लिए यूज किया क्योंकि मुझे 22 टर्म्स का सम ढूंढना है and 22nd term will be the last term and I have the value of last term, so I have used the formula of A plus L. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, आ जाएगा आपका आंसर. So 22 upon 2 will give you 11 and this will give you 151. The answer is 1661. So sum of first 22 terms you are going to get as 1661. Clear everyone with this question number 7? Yes, Karmash, बोलिए क्या डाउट है? सर Yes. ये जो आपने एस ए की वैल्यू ढूंढी उसके हाँ. बाद वाला समझाओ ना एक बार. A की वैल्यू आ चुकी है बराबर. अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ढूंढना है. हाँ सर. तो मैंने फॉर्मूला यूज किया हमारा वो शॉर्टकट वाला n अपॉन A प्लस L. S22 ढूंढना है यानी कि n की वैल्यू 22 होगी. हाँ A सर. का वैल्यू आ चुका है एंड लास्ट टर्म यानी कि 22nd टर्म इज योर लास्ट टर्म. क्या आपके पास 22nd टर्म का वैल्यू है? यस सर. जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर. क्लियर हुआ कर्मश? यस सर. Good. So now we'll move to the next one, question number 8. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. Find the sum of first 51 terms. बहुत ही बड़ा सम ढूंढना है. S51 आप लोगों को ढूंढना है. Whose second and third term are 14 and 18. सेकेंड टर्म दिया है 14 एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है 18. तो अब देखिए S51 ढूंढने के लिए n की वैल्यू आप 51 लोगे, आपको A का भी वैल्यू चाहिए एंड D का भी वैल्यू चाहिए, तभी तो जाके आपको S51 मिलेगा ना. याद कीजिए आपके वो 4 पैरामीटर्स, उसमें से 3 की वैल्यूज होंगी तो ही चौथा मिलता है. A का वैल्यू एंड D का वैल्यू ढूंढने के लिए आप देखिए ये दो वैल्यूज का यूज कर सकते हो क्या. सेकेंड एक्सरसाइज में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं. A2 को यू कैन राइट लाइक दिस, A प्लस D, यानी कि यहां से एक लीनियर इक्वेशन आ गया. A3 को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस 2D. सो 18 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D. दो इक्वेशंस मिल चुके हैं. सॉल्व कीजिए बाय लीनियर बाय एलिमिनेशन मेथड. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D. A एंड D का वैल्यूज मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे, तो आ जाएगा ना आपका S51 by the formula of n by 2 2A plus n minus 1D, यानी कि 51 upon 2 2 times A plus n minus 1 times D. इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू आएगा 10 एंड D का वैल्यू आएगा 4. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा आपका S51.
2 times 10 and 51 minus 1 will give you 50 times d का value 4. I think so now you can easily solve this. ये क्वेश्चन आप ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज का थोड़ा सा मिक्सचर था. Perfect. 5610 is the correct answer. I can see a lot of students telling this answer 5610. Yes, Shreya, बोलिए क्या डाउट है? सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना. एक्चुअली डी की वैल्यू हम 18 माइनस 14 से कर लेंगे और बाद में मतलब इक्वेशन 1 है 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, सो 14 इज इक्वल टू a प्लस 4 करके हम कर सकते हैं ना डायरेक्ट. You can do that method also. A3 and A2 दिया है तो डिफरेंस ढूंढने के लिए you can use A3 minus A2. एक बार डिफरेंस मिल गया तो फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए आप A2 में से D को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हाँ. आपको A मिल जाएगा. You can use this method also to find A and D. That is correct. ओके सर. Okay, so 15 seconds for all of you to note it down. We'll move to the next question then. Question number 9. कितना भी मार्क्स का क्यों ना पूछा गया हो, if this question is of 3 marks also, तो भी आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो. मैथ्स का यही एक खासियत है, मार्क्स के ऊपर से सम का लेंथ डिसाइड नहीं होता है. अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड है तो आप यूज कीजिए, भले वो 4 मार्क्स में क्यों ना पूछा गया हो. इफ योर मेथड इज करेक्ट, आंसर आपका आंसर अगर करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही. चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. So in the question number 9, if the sum of first 7 terms is given to you, if the sum of first 7 terms of an AP is 49, S7 की वैल्यू दी है 49 and that of 17 terms is 289, S17 की वैल्यू है 289. Find the sum of first n terms. आपको ढूंढना है Sn. Sn यानी कि एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आने वाला है. पर सोचिए Sn ढूंढने के लिए आपको A का वैल्यू भी चाहिए, आपको D का वैल्यू भी चाहिए, n की वैल्यू तो आप n ही रखने वाले हो. ओके, द वैल्यू ऑफ n विल रिमेन सेम, दैट इज n ओनली. पर A एंड D का वैल्यू मिलेगा तभी तो ये Sn का एक फॉर्मूला बनेगा ना. यहाँ पे A एंड D ढूंढने के लिए देखिए, यू हैव दिस टू वैल्यूज. जो आप सेकंड एक्सरसाइज में करते थे टर्म्स के लिए, वही चीज अब आप लोग यहाँ पे सम्स के लिए करेंगे. S7 को I can write like this, 7 upon 2, 2 times A plus 6D. I can write like this. S7 के जगह पे I can substitute 49. ये आएगा 7, यहां से 2 को लेके अगर मैं कैंसिल कर दूं तो अंदर बचेगा A plus 3D. I can also cancel this 7 and this 49, तो मुझे मिला 7. Writing the first equation, A plus 3D is equals to 7. देखिए आया इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही आप सेकंड वाले के लिए भी सॉल्व कीजिए, तब आपको मिलेगा सेकंड इक्वेशन. सो S17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 upon 2, 2A plus 16 times D. S17 की वैल्यू है 289. 17, ये 2 एंड अंदर से मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूं. अब 17 एंड 289 भी कैंसिल होगा by 17. So यहां पर से आ गया आपका सेकंड इक्वेशन, A plus 8D is equals to 17. 2 इक्वेशंस आ चुके हैं. नाउ कैन यू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A and D? फटाफट A and D मुझे ढूंढ के बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A and व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? कम ऑन. You are having 2 equations in front of you. Solve it and tell me the value of A and D. The value of A is 1 and the value of D is correct. Absolutely correct, Anshul. I can see a lot of students answering this. Very good. A का value आएगा 1 and D का value आएगा 2. Absolutely perfect. Now you need to find Sn. Sn का formula क्या होता है? n by 2, 2A plus n minus 1 times D. तो
हमें नहीं पता कितने टर्म्स का सम ढूंढना है, इसके लिए हमने यहाँ पे लिए Sn, n टर्म्स का सम ढूंढिए. So n upon 2 times the value of a is 1 and the value of d is 2. I can take 2 common and आपका बचेगा यहाँ पे आंसर 1 plus n minus 1. 1 cancel, so n square. Sum of n terms आपका क्या आया आंसर? n square. This is your final answer. कभी भी अगर आपको Sn ढूंढने बोला जाए तो समझ जाना आपका आंसर है ना n के टर्म्स में ही आएगा. It will not give you a value. वो कोई फिगर नहीं देगा आपको. अगर आपको Sn ढूंढना है, that means your answer will always remain in terms of n. So I think so now this question is clear to all of you. Question number 9. 15 seconds for all of you to note it down. If anyone have any kind of doubt, you can raise your hand, please. Yes, Aditya, बोलो क्या डाउट है? सर आपने ये जो n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2 किया, अगर हम 2 को कॉमन ले ले, हाँ, तो 2 को कॉमन लेके तो कट किया ना मैंने ऊपर से. I have taken 2 common and 2 कट गया तो अंदर बचा 1 plus n minus 1. 1 भी कट गया, n into n will give you n square. देखिए, I can cancel this 2 and 2. सर तो अगर हम ऐसा करें कि n/2 ब्रैकेट 2 प्लस n-1 इंटू 2 कॉमन ले तो आप 2 को ही कॉमन ले रहे हो ना अल्टीमेटली. यस सर. हाँ, तो वो बाहर से कटेगा ही ना. If you are taking 2 common from this entire bracket, तो बचेगा क्या? देखिए 2 आ गया बाहर, अंदर बचा 1 प्लस ये ब्रैकेट बचा n-1. Now समझ गया. cancel 1 cancel. Yes, Priyansh, what's your doubt? सर ये ए और डी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते कोई हैं? भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, यू कैन यूज दैट मेथड. सर मेरी वैल्यू थोड़ी मतलब गलत आ रही है इसमें. तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. कोई भी मेथड यूज कीजिए, आंसर तो सही आएगा. एक बार आप कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा. Okay, so we'll move to the next one. Question number 10. Question number 10 and question number 11. ये दो क्वेश्चंस है ना एमसीक्यू बेस पर हैं. सेक्शन ए के अंदर जो एमसीक्यू आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरीके से हम करेंगे सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 10. Show that this terms a1, a2 till an form an AP and an is given to you. For the first case, an का वैल्यू है 3 plus 4n. हमें चेक करना है कि इस वाले रिलेशन पर से जो मुझे वैल्यूज मिलेंगे क्या वो AP बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं. So if I put n is equals to 1, तो मुझे a1 मिलेगा, यानी कि 3 plus 4 times 1. a1 की वैल्यू क्या मिली? 7. वैसे ही अगर मैं n में 2 डालता हूं तो मुझे a2 मिलेगा 3 plus 4 times 2. That means 8, 9, 10, 11. a2 की वैल्यू आती है 11. Similarly, I'm taking n is equals to 3. I got a value of a3. मैं ये जो वैल्यूज है वो मैं इसी रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये दिया हुआ है, एक जनरल फॉर्म है. आप n में जो डालोगे, मान लो अगर आप n में 100 डालते हो तो आपको a100 मिलेगा. आप n में अगर 50 डालते हो तो आपको 50th टर्म मिलेगी जस्ट बाय सॉल्विंग दिस RHS. वैसे ही मैंने n में 3 डाला तो a3 मुझे मिलेगा 3 plus 4 times 3, so 12, 13, 14, 15. थर्ड टर्म मुझे मिला 15. 3 टर्म्स मिल चुके हैं, बराबर. अगर ये AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए. चेक करो, a2 minus a1 से पहले हम चेक करते हैं. So 11 minus 7, the answer is 4. वैसे ही इनका चेक करो, a3 minus a2, 15 minus 11, अगेन आंसर क्या आया?
4 each and every time. The common difference is same, so your sequence is in AP. So you will write it is in AP. अब अगर AP में है तो आपको ढूंढना है find the sum of first 15 terms as written in the question. नीचे की तरफ देखिए लिखा होगा also find the sum of first 15 terms. तो फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन के लिए S15 ढूंढना है. S15 के लिए the formula will be 15 by 2 times A का वैल्यू है 7 प्लस n-1 यानी कि 14, D का वैल्यू है 4. देखिए डाल दिया मैंने सारा वैल्यूज Sn के फॉर्मूला में. इसको सॉल्व कर देते हैं तो आ जाएगा आपका S15. So solving this 2 and this cancel. So 7 plus यहाँ से आ जाएगा 28. That will give you 15 and the final answer जो आएगा यहाँ पे आपका that is 525. So S15 आ रहा है आपका 525. दो चीज आपको इस क्वेश्चन में करनी थी. सबसे पहले वैल्यूज ढूंढिए यानी कि टर्म्स ढूंढिए, फिर चेक कीजिए क्या आपका सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है. एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस का सेम होना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हमने डी की वैल्यूज ढूंढी. द वैल्यू ऑफ डी इज सेम यानी कि आपका सीक्वेंस एपी में तो है. अब एपी में है तो ढूंढिए S15. To find S15 you will use the formula of Sn. Formula use कीजिए, values डाल दीजिए, you will get the value of S15. Clear everyone with this question number 10 का 1? Tell me in the chat box. Question number 10 का first part. Good. The first part is clear. Can you all solve the second part? It is exactly same, सिर्फ general form अलग है. वहां पे an का वैल्यू दिया हुआ है 9 minus 5n. पहले आप n में 1 डालिए, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा. n में 2 डालिए, सेकेंड टर्म मिलेगा. n में 3 डालो, थर्ड टर्म. नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अगर डिफरेंस का वैल्यू सेम आता है तो आपका ये सेकेंड वाला भी सीक्वेंस एपी में है. अगर वो एपी में है तो ढूंढिए S15 फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन. So this is quite similar with your first part, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ. You all can solve the 10th question का second part. That can be done. Yes, good. I can see some of the students are sending the answers. That is minus 465. Correct. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए I will take one student जिसके साथ मैं डिस्कस करके आपको ये समझाने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. Yes, Shreya, can you please unmute the mic? Yes, sir. Yes, Shreya, please read the question number 11. Okay, sir. If the sum of the first square, what is the first term? That is S1. What is the sum of the first two term? What is the second term? Similarly, find the third, comma, the 10th and the 9th term. Okay. यानी कि श्रेया क्वेश्चन पढ़ के ये तो आपको पता चला कि बहुत सारी चीज ढूंढनी है इसमें. A lot of things. बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है क्वेश्चन नंबर 11 में. ठीक है, तो पहले एक एक करके समझते हैं. सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, यानी कि श्रेया Sn का रिलेशन दिया हुआ है 4n minus n. 4n minus n square. जैसा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया था an का रिलेशन, वैसे यहाँ पे Sn का रिलेशन दिया है. हाँ. अब श्रेया मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं n के अंदर 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? S1 मिलेगा. हाँ. S1 की वैल्यू 4 minus 1 3. S1 की वैल्यू 3 है. श्रेया टेल मी S1 क्या है? What is the sum of first term. Very good. Sum का मतलब ही होता है sum of Sn का मतलब होता है sum of first n terms. तो S1 का मतलब क्या होगा? Sum of first term. और इसको आप A बोल सकती हो. हाँ. यानी कि आपने A का वैल्यू ढूंढ लिया. Yes, sir. वैसे ही श्रेया अगर मैं n के अंदर 2 डालूंगा तो मुझे S2 मिलेगा. Yes, sir. S2 की वैल्यू 4 times 2 minus 2 का स्क्वायर
So 4 2s are 8 minus 4. The answer is 4. 4. Now Shreya, tell me S2 क्या होता है? Sir, sum of second term. Sum of First second and term या फिर sum of first, first two first terms? and second. First two terms. So S2 के बदले can I write like this? First term plus second term. इनको ऐड करने पे आंसर आता है 4. Yes, sir. A का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3. So 3 plus A2 is equals to 4. तो A2 की वैल्यू 1 आएगी. 1. Yes, sir. Now Shreya, you have A2, you have the value of A. Can you find that common difference? Yes, sir. क्या आएगा common difference? Sir, -2. Very good. Now everyone pay attention कि आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुका है, आपके पास D आ चुका है. आप लोगों को सबसे पहली चीज जो ढूंढनी थी, what is the first term? You got it. What is the sum of first two terms? मिल चुका है sum of first two terms भी. What is the second term? मिल गया second term भी. Then similarly find the third, the 10th and nth term. Similarly find the third term, the 10th term and nth term. ये तीन चीज ढूंढनी है, तो एक एक करके देखते हैं. A3 होगा आपका A plus 2D. The value of A is 3 and the value of D is -2. So 3 minus 4 minus 1. आ गया आपका थर्ड टर्म -1. ऐसे ही अब हम ढूंढते हैं दूसरी चीज, that is your 10th term. To find the 10th term, the formula will be A plus 9D. Again substitute कर दीजिए आपके values. So 9 into -2 minus 18 plus 3 will give you -16. Sorry, over here it will be -15. यहाँ पे -2 है. 9 into -2 is -18. -18 plus 3 will give you -15. ऐसे ही तीसरी चीज आपको ढूंढनी है, that is nth term. अब ध्यान से सुनिए, nth term यानी कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? n के टर्म्स में आंसर मिलेगा. The value of A is 3 and the value of D is -2. सॉल्व करते हैं इसको. 3 -2n plus 2. So 5 minus 2n, ये है आपका an का आंसर. देखिए ध्यान से, आया आंसर n के टर्म्स में. So you just need to remember one thing, अगर आपको an ढूंढना है या sn ढूंढना हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपका आंसर हमेशा इन टर्म्स ऑफ n रहेगा. तो घबरा मत जाना कि आंसर क्यों नहीं आया. दिस इज द ओनली योर आंसर. Okay, so note it down everyone. Question number 11, question number 10 and 11, ये दोनों questions MCQ perspective पर है. बोर्ड एग्जाम्स में इन दो टॉपिक में से ये दो क्वेश्चन 10th and 11th, एक क्वेश्चन तो रहता ही है, either in your prelims या तो आपके बोर्ड एग्जाम्स. एंड अगर इसके अलावा आपके पास कोई और मेथड भी है, यू कैन यूज दैट मेथड. ये सिर्फ मैंने एक नॉर्मल मेथड बताया है जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, ठीक है, सो दैट यू कैन बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस मेथड. यू कैन ऑल्सो गो बाय द शॉर्टकट ऑल्सो, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एमसीक्यू है तो आप स्टेप्स ना करें चलता है, बट इफ इट इज इन द सेक्शन बी यू नीड टू शो दी स्टेप्स शो करना पड़ेगा. ओके आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी बोल सकते हो A3 का, A10 का, बट यू नीड टू शो दी स्टेप्स. सो उसी के मार्क्स मिलते हैं. यस नेहा, व्हाट्स योर डाउट? सर बोलिए. सर मुझे ये 11th क्वेश्चन समझ नहीं आया. कौन से वाले पार्ट से? ये नीचे से, मतलब फर्स्ट पार्ट आपने जो करवाया ना वो नहीं समझ आया. ठीक है, यहां तक समझ में आया. जब हमने n में 1 डाला तो हमें फर्स्ट टर्म मिला. यस सर. n में 2 डालेंगे हम तो S2 मिलेगा हमें. हाँ सर. एंड S2 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. हाँ हाँ. S2 का मतलब
पहले दो टर्म्स को ऐड कर दो, उसको हम S2 बोलते हैं। पहले दो टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो इनको हाँ। ऐड करने पे आंसर आता है 4। A का वैल्यू आपके पास है 3, तो A2 मिल जाएगा आपको नेहा, दैट इज 1। ठीक है, यस सर। अब देखिए A2 है आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास, क्या आप डिफरेंस ढूंढ सकते हो? हाँ अब सर। कॉमन डिफरेंस आ गया, you have the value of A, you have the value of D, you can find third term, you can find 10th term, you can also find AN. Clear now? Good. So चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, that is question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Such kind of questions you have solved in the second exercise. उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। You need to find the sum of first 40 positive integers. पहले 40 टर्म्स का सम ढूंढिए जो 6 से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहला नंबर 6 से डिविजिबल होता है वो है 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे चलता जाएगा। एंड कैन यू टेल मी 40th टर्म जो 6 से डिविजिबल होगा? कौन सा होगा वो टर्म जो 6 से डिविजिबल होगा? 40th वाला, यानी कि 6 into 40, दैट इज 240। मिल गया आपको लास्ट टर्म भी। ठीक है, आपको 40 टर्म्स ढूंढने थे जो 6 से डिविजिबल होते हैं। सो यू कैन नो कि ये 6 का टेबल ही आने वाला है, 6, 12, 18 एंड 40th टर्म ढूंढना है तो 6 into 40। अब आप लोगों को इस पूरे एपी का सम ढूंढना है। आपको पता है टोटल 40 टर्म्स है, S40 आपको ढूंढना है। द वैल्यू ऑफ A is 6, द वैल्यू ऑफ D is also 6 एंड आपके पास लास्ट टर्म है 240। बोलिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, शॉर्टकट वाला या फिर वो लंबा वाला? Tell me in the chat box. Can you use the last term formula? And अगर यूज कर सकते हो तो tell me the final answer. Find S40 then everyone. Come on. Anshul, गलत। 4920 is the correct answer. Okay, you can go by any of the method. आप शॉर्टकट से भी जा सकते हो या तो फिर आपके वो नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हो। 4920 is the correct answer. Very good. इसी के जैसा है देखो 13th क्वेश्चन। Find the sum of first 15 multiples of 8. पहले 15 8 के मल्टीपल्स का सम। तो पहला मल्टीपल होता है 8, दूसरा मल्टीपल 16, 24, ऐसे 15th मल्टीपल होता है 120। कैसे ढूंढा? 8 into 15 करके। अब हमें ढूंढना है इन 15 टर्म्स का सम, S15 ढूंढना है। You have the value of N15, you have the value of A8, लास्ट टर्म है आपके पास 120। फटाफट सॉल्व कीजिए एंड टेल मी S15। कम ऑन, यू कैन यूज द लास्ट टर्म मेथड। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज कीजिए एंड टेल मी S15। वेरी गुड रौनक, करेक्ट। S कर्मश, करेक्ट। यमन, गुड। 960 is the correct answer. A lot of students are getting the correct one. Very good. Very good. So now move to the 14th one. देखिए 14th question भी ऐसा ही है कुछ। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. 0 and 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सबका सम ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑड नंबर 0 and 50 के बीच में जो आता है दैट इज 1, फिर 3, 5, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट नंबर 49 होगा, दैट विल बी ऑड। आपको ढूंढना है इन सारे ऑड नंबर्स का सम। तो A का वैल्यू आपके पास है 1, D का वैल्यू आपके पास 2, N क्या होगा? Can anyone tell me what is the value of N? $25 is the correct answer. अगर किसी को डाउट है तो देखो 1 से लेके 50 में आधे नंबर्स ऑड होते हैं, आधे नंबर्स इवन होते हैं। आपको तो सिर्फ ऑड नंबर्स का सम ढूंढना है ना, तो n का वैल्यू क्या होगा? 25। द वैल्यू ऑफ n इज 25। आपको ढूंढना है S25। देखिए 4 में से 3 वैल्यूज आपको मिल चुके हैं। यू नीड टू फाइंड द फोर्थ वन।
just substitute in the formula of the last term. शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ S25. आंसर आने वाला है यहाँ पे 625. वेरी गुड. आदित्य, आपके इतने सारे 625 आए. यस राघव, व्हाट्स योर डाउट? सर सर यहाँ पे ऑड नंबर्स का सम पूछा है एंड वैसा तो जिसको फॉर्मूला पता है दैट सम ऑफ ऑड फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, यू कैन नॉट यूज ओवर हियर. ओके, ठीक है, वो यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते हो. यू नीड टू गो बाय द मेथड ओनली यहाँ पे. हाँ, बट इफ इट इज आस्क्ड इन द एमसीक्यू यू कैन यूज दैट मेथड. वैसे ही इवन नंबर्स का भी सम ढूंढने का एक फॉर्मूला है, आप वो भी यूज कर सकते हो. Okay, yes, so those students who know such kind of formulas, you can use it, but only in the MCQs, because section B, C and D ये descriptive part है, आपको method show करना पड़ेगा. Yes, आदित्य. सर ये आपने ऑड नंबर 25 कैसे निकाला, उसका कोई शॉर्टकट है? पहले 50 नंबर देखिए, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसमें आधे ऑड नंबर्स होते हैं और आधे इवन नंबर्स होते हैं. करेक्ट आदित्य? यस सर. हमने यहाँ पे टोटल समझ गया, नंबर्स लिए, तो 25 ऑड 25 इवन. ओके, वेरी गुड. चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. यस प्रियांश, आपका भी कुछ डाउट है? टेल मी. सर आपने इस क्वेश्चन में एल क्या लिया है? एल लास्ट टर्म 49. ओके ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. सब लोग पढ़िए ध्यान से. अब जो ये 5 क्वेश्चंस आएंगे ना, 6 क्वेश्चंस, ये सारे मस्त वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है. एंड डोंट वरी, आज ये 6 क्वेश्चंस पूरे के पूरे तो खत्म नहीं हो पाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 15, बिकॉज 5 o'clock को सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग क्लास, तो मैं ये 15th क्वेश्चन लास्ट करवा रहा हूं अभी के लिए. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चंस हम करेंगे हमारे सैटरडे वाले क्लास में. ऐसा मत सोचना कि आपका टेस्ट का सिलेबस कम होने वाला है. टेस्ट का सिलेबस उतना ही है, ये 5 क्वेश्चंस की वजह से कम नहीं होगा. अभी के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन इज द लास्ट फॉर टुडे. चलिए पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको हमने एक कंस्ट्रक्शन का काम दिया और कंडीशन ये रखा कि वो जितना दिन डिले करेगा ना काम को, हम उतनी पेनल्टी उससे लेंगे. अगर उसने, रीड इट फर्दर, 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे. अगर एक दिन का उसने डिले किया तो कितना रुपया चार्ज करोगे आप उससे? 200 रुपीज यू विल चार्ज एज अ पेनल्टी. 2 दिन डिले किया तो सेकेंड डे पे कितना चार्ज करोगे? 250. देखिए यहां पे ध्यान से, अगर उसने एक दिन डिले किया तो आप 200 रुपए लोगे फर्स्ट डे के. सेकेंड डे 2 दिन डिले किया तो सेकेंड डे पे कितना लोगे? 250. तीसरे दिन भी डिले किया तो थर्ड डे पे 300. हर नेक्स्ट डे पे 25 यहाँ पे 50 रुपीज बढ़ते जाएंगे एज अ पेनल्टी. As written in the question, 200 for the first day, 250 for the second, 300 for the third, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding. हर next day का penalty previous से 50 रुपए ज्यादा होता है. मान लो कि अगर उस contractor ने, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अगर उसने 30 दिन तक डिले किया तो उसको पेनल्टी अमाउंट टोटल कितना पे करना पड़ेगा वो ढूंढना है. देखिए, एक दिन डिले किया तो 200 रुपए, सेकेंड डे डिले किया तो सेकेंड डे का 250, ऐसे ही थर्ड डे का 300. अगर सिर्फ 3 ही दिन का ढूंढने बोला जाता तो आप क्या करते? ये तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते. 750 रुपीज उसको देना पड़ता एज अ पेनल्टी अगर वो 3 दिन डिले करता, पर वो यहाँ पे 30 डेज डिले कर रहा है. यानी कि आपको पहले 30 टर्म्स का सम ढूंढना है. n की वैल्यू 30, you need to find s30, the value of a is 200 and the value of d is 50. देखिए बहुत ही इजी था, सिर्फ समझिए.
पहले 30 दिन के पेनल्टी अमाउंट को आपको ऐड करना है। फर्स्ट 30 टर्म्स यानी कि S30 का सम ढूंढना है। n की वैल्यू 30, द वैल्यू ऑफ a is 200 एंड द वैल्यू ऑफ d is 50। यूज कीजिए आपका फॉर्मूला Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1 times d। वैल्यूज डाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, दैट इज 27750। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन काम डिले किया तो उसको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 27,750 रुपीज। 27,750 रुपीज उसको टोटल पेनल्टी पे करना पड़ेगा फॉर डिले ऑफ 30 डेज। 30 दिन काम डिले किया तो 27,750। गुड। So this was the last question for today, question number 15. Question number 16 से लेके 28 तक हम next time करेंगे। So if anyone have any kind of doubt, you can raise their hand, and जिनको doubt नहीं है, they can leave and start practicing for your Sunday test. Yes, Raghav, आपको कुछ doubt है? Okay. Yes, Priyansh, your doubt? क्या आप hand lower करना भूल गए थे? सर मेरे को क्वेश्चन 11 में डाउट है। Question 11th में 11 क्या डाउट है, बोलिए। सर उसमें आपने n is equal to 2 वाला स्टेप कैसे किया है? जब उसमें आप n is equals to 2 लोगे तो आपको S2 मिलेगा। जहां जहां पर भी n दिखता Yes, है, sir. देखिए वहां पे था Sn is equals to 4n minus n square लिखा हुआ है।